A very good evening to all. Namaskar. We will take the session in a blended English and Hindi version because we just got a request कि आप हिंदी में session लीजिए. So a very warm welcome to all of you. Safetree A to B Insurance India Limited आप सबका हार्दिक स्वागत करता है. Safetree in its pursuit of spreading medical information for COVID tsunami has launched a series of medical webinar on weekly basis with the medical experts. As you all know, friends, COVID tsunami has had a very disruptive and a devastating effect on our life. हम हर जगह देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम महामारी कॉज कर रही है और हम ये भी देख रहे हैं कि जो लोग के पास कोमॉर्बिडिटीज हैं जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स, शुगर की तकलीफ यानी कि डायबिटीज, उस पे ये प्रॉब्लम ज्यादा दे रही है. We all know that India is the world's diabetes capital and diabetes has been in spotlight after this pandemic has started. It's like a time-ticking bomb of our nation. I am Dr. Supriya Anand, and on the behalf of Safetree, I would like to welcome a very, very renowned diabetologist, Dr. T.R.D. Patro, who is a founder chairman of CDAS Hospital. Dr. Patro, a very warm welcome to you, sir. And I would request him to solve our queries related to this COVID and diabetes conspiracy. Dr. Patro, to add about him, he has about over 2 decades of experience in the field of medicine, critical care, with a special focus on diabetes. He has authored about various books which are on international platforms and has presented research papers. To add to his accolades, he has chaired various diabetes conferences. और कितने सालों से, I would say consecutively, he has been receiving the Best Diabetologist Award, and he has received Delhi Ratna and Gurugram Ratna Award as well. His soft and caring and compassionate nature is one of his assets, I would say, and working with him is a pleasure. And he has initiated a series of voluntary programs. One of them is Chiranjeevi Bhavo, which is a move to immunize the underprivileged people. He has also recently started a campaign which is MATE, which is based on the holistic medicine. It's a pleasure to have you over, sir. Over to you, sir. Please enlighten us with this COVID and diabetes conspiracy and how can we solve this? Welcome, sir. Thank you, Dr. Supriya ji, and it's my privilege to be in this platform, and I'm really blessed, and I'm very happy, and thank you for your kind words. I've been lucky to get accolades from people around. Only thing is that I've been recognized. They have been kind to me. They give me a lot of support, so I'm here. And today I will try to do my justice, giving as much information as possible. And I would like कि लोग मुझे प्रश्न पूछें, मैं उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा. मैं जरूर आपसे ये कहूंगा कि देखिए, शब्द इंश्योरेंस से जब बात उठती है तो लोग इसे कुछ और तरीके से लेके चले जाते हैं. देखिए, इंश्योरेंस आपको खुद करना पड़ेगा. आप अपने आप को इंश्योर करिए. आप अपनी केयर पहले अपने दिमाग में डालिए, नॉलेज लीजिए, अपनी सेहत को इंश्योर कीजिए. दूसरी है, आप अपनी सेहत को इंश्योर तभी कर सकते हैं जब आप उस सेहत के बारे में नॉलेज लें, जब आप उस चीजों के बारे में अवगत हों. जब आप दुश्मन को नहीं समझोगे, उसके आकार विकार नहीं समझोगे, तो उसकी सहार नहीं कर सकते. आप तो सहारा नहीं देना, उसके सहार करना. सर सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, पर सब लोग आपको देखना भी चाहते हैं, तो प्लीज काइंडली आप अपना वीडियो ऑन. मैं यहाँ से वीडियो ऑन कर रहा हूँ, बट मुझे मिल रहा है वीडियो हैज बीन, you cannot start your video because the host has stopped it. Okay. सॉरी सर, आप कंटिन्यू करिए. So अब मैं लिख रहा हूँ. So we just working it out. Okay. So धन्यवाद मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए.
मैं सबसे पहला चीज ये कहूंगा कि डॉक्टर सुप्रिया जी ने जो कहा है कि भारतवर्ष दुनिया का डायबिटिक कैपिटल बन चुका है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। इसमें हमारी मीठे खाने पीने की दोष नहीं है, इसमें हमारे लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है। जब हम ऐसे गंभीर यातनाएं झेल रहे हैं इस वक्त, जिसका नाम है कोविड, और ये एक बड़े खतरनाक तरीके से हमें यातनाएं दे रही हैं। सबसे पहला तो ये आपको बाहर जाने से रोक रही है, दूसरा अपनों से दूर कर रही है, और तीसरा ये कह रही है कि आप टेक्नोलॉजी से ही कनेक्टेड रहिए, जैसे हम आप सब हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस। तो देखिए दोस्तों, ये दिन आएगा हमें पता नहीं था। अगर टेक्नोलॉजी को लॉन्च करना कोविड को जरूरी था तो बिना आए कर सकता था, लेकिन आज कोविड के कारण हम दूरी से मिल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डायबिटीज आज बहुत बड़ी खतरा है। क्यों? कोविड के दौरान इसलिए नहीं कि डायबिटीज को कोविड होने का चांसेस ज्यादा होता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है कि डायबिटिक पेशेंट को कोविड होने का चांसेस ज्यादा है, बिल्कुल। हाँ, डायबिटिक पेशेंट को अगर कोविड हो गया तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत खतरनाक होंगे। एक आम आदमी को जब कोविड होती है तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस इतने ज्यादा नहीं होते जितने एक डायबिटिक पेशेंट्स को कोविड। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको जो कोविड और जो डायबिटीज है, इन दोनों की जो खतरनाक स्थिति बन सकते हैं, इनके बारे में मैं बात करूंगा। दोस्तों, डायबिटीज के बारे में जब हम बात करते हैं तो अक्सर हम ब्लड शुगर के बारे में बात करते हैं। अगर हमारी ब्लड शुगर कंट्रोल के बाहर हो जाए, अगर ब्लड शुगर हमारी कंट्रोल के बाहर हो जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम बिगड़ जाती है। तो डायबिटीज के कंट्रोल होने से इम्यून सिस्टम फिर वापस अपने सही मायने में सही ताकत में आ जाती है। अब हम आपको समझाएंगे कि इम्यून सिस्टम का मतलब क्या है। जैसे आर्मी होती है, उस आर्मी में निचले लेवल से ऊपर लेवल कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर तक बने होते हैं। इसी तरह से हमारे ब्लड में इम्यून सिस्टम होती है। स्किन से शुरू होता है इम्यूनिटी, फिर व्हाइट ब्लड सेल्स आते हैं, फिर लिम्फोसाइट्स आते हैं। तो ऐसे जितने सारे इम्यून सिस्टम हमारे, एक एक सीरीज है हमारा, व्हाइट ब्लड सेल्स और लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ईसनोफिल्स, ये सारे अलग अलग नाम हैं हमारे इम्यून सिस्टम के। लेकिन इसमें से वायरस के लिए जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो लिम्फोसाइट प्ले करता है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, मैं ये सब आपको इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप सबको समझ में आना चाहिए इम्यूनिटी क्या है। हम इम्यूनिटी के नाम से बहुत सारी चीजें खा लेते हैं, इम्यूनिटी के नाम से बहुत सारे प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी जानना बहुत जरूरी है। आपके आपके आपको अभी तक आपके जहन तक चला गया होगा कि कोविड के लिए क्या प्रिकॉशंस बोले जा रहे हैं। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, और तीसरा हैंड सैनिटाइजर। हैंड सैनिटाइजेशन पे ज्यादा ध्यान दिया गया। क्यों? क्योंकि आपके हाथों की उंगली से नाक में, आंखों में, मुंह के अंदर अगर आपने कोरोना वायरस को हेल्प किया बॉडी में एंटर करने के, तो आपकी चांसेस कोरोना इन्फेक्शन होने का बढ़ जाता है। ठीक है? अब क्या होगा? जब आप मास्क लगा लेंगे तो वो नहीं होगा। दूसरा क्या होता है मास्क लगाने से? दूसरों की जो नाक से निकला हुआ, मुंह से निकला हुआ, वो आपके नाक और मुंह में नहीं जा पाएगा। तो बहुत जरूरी है मास्क अच्छी तरीके से पहनना, नाक को भी कवर करना, मुंह को भी कवर करना। और जब नॉर्मल टाइम पे आप बाहर जाते थे तो आप गॉगल्स पहनते थे, स्टाइलिश गॉगल्स, शेड्स पहनते थे। अब वो आदत वापस कर लीजिए, खुद अब गॉगल्स लगाइए, शेड्स लगाइए, बाहर जाइए, क्योंकि वो आंखों को प्रोटेक्शन देगा। और हैंड सैनिटाइजेशन पे ध्यान दें।
अब मैं बता देता हूँ, ये जो आपको बताया जा रहा है, आपको पता है ये भी एक इम्यूनिटी का हिस्सा है। ये बन जाता है बैरियर इम्यूनिटी। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन बैरियर इम्यूनिटी। आपने बैरियर पैदा कर दिया। जैसे बॉर्डर्स में फेंसिंग होती है, चाहे वो बार्बड वायर की हो, चाहे वो फट्टे लगाए हो, या इलेक्ट्रॉनिक बार्बिंग हो, या लेजर बार्बिंग हो, तो ये एक बार्बिंग दे दिया गया। नेक्स्ट इम्यूनिटी क्या आता है? जब आपके मुंह के अंदर, आंख के अंदर, नाक के अंदर वायरस की एंट्री हो जाती है, तो उसे एक एंट्री पॉइंट चाहिए होता है। तो वो एंट्री पॉइंट क्या होता है? हमारे नाक, आंख और मुंह के अंदर जो परत होती है, जो लाइनिंग होती है, हम उसको म्यूकोसल लाइनिंग बोलते हैं। वो बहुत नमी सी होती है, बहुत ही नाजुक होता है। अगर उसके अंदर छोटी छोटी अल्सर्स हैं, या उसके अंदर कोई घाव है, या उसके अंदर कोई रॉ फ्लैश दिख गया, तो वहां वायरस एंट्री मारती है। जब वायरस एंट्री मारती है, तो आपकी जो फर्स्ट लाइन डिफेंस ब्लड में होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको बहुत बार ब्लड टेस्ट करके न्यूट्रोफिल्स या पॉलीमॉर्फ्स के नाम से पढ़ते होंगे, मैक्रोफेजेस के नाम से पढ़ते होंगे, उनकी बस की बात नहीं है जो वायरस को पकड़ सकते हैं। इसका मतलब वो वायरस बड़े आसानी से आपके ब्लड से बहुत सारे जगहों पे फैल जाती है। वो जब फैलती है, तो एक अलग सा स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लिम्फोसाइट। वो एक विजिलेंस टाइप की पावर होता है उस सेल्स में। वो उस वायरस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है, और उसकी इंफॉर्मेशन आपके गले के अंदर लिम्फ नोड्स में जाता है। इसीलिए जब आपको वायरल फीवर होती है, तो गले में दर्द होता है, तो कोविड होने वाले लोगों को बोलते हैं आपको सोर थ्रोट तो नहीं हो रहा, आपके नाक में स्टफिंग तो नहीं हो रही है, क्योंकि वहीं पे बहुत ज्यादा लिम्फ नोड्स होते हैं, और वो छोटे छोटे पुलिस स्टेशन हैं, और वो पुलिस स्टेशन एक्टिव हो जाते हैं। और वहां वायरस जब वो पकड़ में आता है, तो उस वायरस को बहुत धुलाई होती है। लिम्फ नोड के अंदर वायरस की बहुत सारी धुलाई होती है, तो वहां वायरस, कुछ वायरस मर जाते हैं। जब वायरस मर जाते हैं वहां पे, तो फिर क्या होता है? उनकी लोड जब बढ़ती है, तो उनकी जो कोटिंग है, वायरस के ऊपर जो कोटिंग है, उसकी प्रोटीन की कोटिंग होती है, जिसके बारे में बहुत बार आपने जानकारी ली होगी। वो प्रोटीन टॉक्सिन की तरह काम करता है, और आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को चैलेंज करता है। अब उसके शरीर से निकला हुआ जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं, वो बंदूक से निकला हुआ गोली की तरह होता है। तो वायरस आपका बॉडी के लिए दुश्मन है, और दुश्मन आपके बॉडी में एंट्री मार चुका है, और वो उस बॉडी के प्रोटीन से जो निकलती है, वो उसकी गोली है। और वो गोली कहाँ मारती है आपको? सबसे सारे जगह पे मारता है, लेकिन मुझे फेफड़े में मारने लगती है, तो असली तकलीफ पैदा हो। इसलिए यहां मैं आपके प्रश्न और उत्तर की जवाब दूं, मैं आपको इस कोविड वायरस की इन्फेक्शन के बारे में मोटा मोटी जानकारी दूं। जब आपको वायरस इन्फेक्ट कर देता है, जरूरी नहीं है कि आपको इन्फेक्शन की महसूस हो जाए। हो सकता है 3 दिन हो गया वायरस को आपके बॉडी में एंट्री मारे, हो सकता है 5 दिन हो गया हो, आपको कमजोरी महसूस होती है, थकान होता है, बॉडी में दर्द होती है, जॉइंट्स में पेन होता है, कुछ लोगों को लूज मोशन तक होती है। आपको फिर से वापस में याद दिलाना चाहूंगा, मैंने क्या कहा था? म्यूकोसल लाइनिंग। जब हम म्यूकोसल लाइनिंग की बात कर रहे हैं, वो लाइनिंग जो बहुत नाजुक सी परत होती है, वो आंतों से लेके यूरिन के ट्रैक तक होता है। तो वायरस की ये प्रोटीन जब उस पर अटैक करती है, तो उसमें लिम्फ नोड्स भी होते हैं। जब वो लिम्फ नोड्स में वायरस घुस जाता है, वो लिम्फ नोड पुलिस स्टेशन की तरह है, तो वायरस की बहुत धुलाई होती है। तो फिर वायरस मरते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। इससे क्या हो गया? आपको लूज मोशन हो गया, और लूज मोशन होने के बाद आपको बुखार आ जाएगा। बुखार आ गया, और बुखार जितना तेजी से बढ़ेगा, जितना तेजी से बढ़ेगा, उतना तेजी से आपकी खून की प्रचलन बढ़ जाएगी। जब आपकी खून की प्रचलन तेजी से बढ़ेगी, तो आपके शरीर के कण कण तक वायरस आसानी से पहुंच जाएगा। उससे क्या होगा? उससे आपको एक्सट्रीम कमजोरी होगा, उससे आपको भूख कम हो जाएगी, क्योंकि वो लीवर में पहुंच जाता है। जब वो लीवर में पहुंच जाता है, ऑब्वियसली आपका भूख मार देगा। जब वो किडनी में पहुंचेगा,
तो आपकी किडनी जो फंक्शन है उस पर भी आपको असर देगा। उस तरह से वो खून की नलियों में घुसेगा, तो खून की नलियों में घुसेगी तो नलियों के अंदर की दीवारों को वो तोड़ने की कोशिश करेगा। जब वो दीवारों को तोड़ने की कोशिश करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, प्लॉट बनेंगे। जब वो प्लॉट बनेगा ब्रेन के अंदर तो क्या हो जाएगा, पैरालिटिक अटैक हो जाएगी। हार्ट के अंदर क्या होगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। इसी तरह से वो जब आपके फेफड़े में पहुंच जाता है तो आपको पता है बिना हवा कोई नहीं है। जब वो फेफड़े पे पहुंच जाती है तो फेफड़े के अंदर वो बिल्कुल इतनी छोटी साइज की होती है वायरस, वो आपके एयर पॉकेट्स, जो अल्टीमेट एरिया है, जो एरिया में ऑक्सीजन और खून की रिलेशन स्टार्ट होता है, एक ऐसे चरम सीमा तक वो वायरस पहुंच जाता है जहां वो ऑक्सीजन को ब्लड के साथ मिलने से रोक देता है। जब वो ऑक्सीजन को ब्लड के साथ मिलने से रोक देगा तो क्या होगा, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। जब आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, सांस के लिए तड़पेंगे आप। जब सांस के लिए तड़पेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ही आपको एनर्जी देगा। ऑक्सीजन ही आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, जो आपकी पावर हाउस है, जो आपके बॉडी के अंदर जनरेटर ऑफ एनर्जी है, उसको जब मिलेगी नहीं, फ्यूल डीजल पेट्रोल जैसे जनरेटर को चाहिए, आपके पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपके अंदर जो भी टिश्यूज हैं वो मर जाएंगे। इसीलिए जब ऑक्सीजन सप्लाई लंग्स के द्वार आपके शरीर में घुसने से रुक जाएगा, हार्ट अटैक होता है, हार्ट रुक जाती है और आपके बॉडी को तड़पने पड़ते हैं। जब हार्ट पे असर डालती है तो आपका बीपी गिर जाएगा, आपके बहुत सारे ट्रबल्स। तो ये चीजें जो कोविड वायरस कर रहा है, ये बड़े आसानी से डायबिटिक पेशेंट में कर देता है। एक नॉर्मल आदमी को अगर डायबिटीज है नहीं है तो वो बहुत लंबा झेल लेता है, वापस आ जाता है, लेकिन डायबिटिक है तो वो बहुत जल्दी क्षतिग्रस्त होता है। You're on mute. Dr. Patro, you can turn on your video now. I think it is enabled. Yeah, now think Yes. मैं लिख रहा हूँ। Okay, thank you so much. Okay, तो अभी मुझे लगता है मेरी बात शायद संक्षेप में समझ में आ गया होगा, वायरस की कोर्सेज। अब डायबिटीज के ऊपर जब हम बात करते हैं तो शुगर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अगर शुगर आपका आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, और जब इम्यूनिटी डाउन होगा तो जैसे मैंने कहा, आसान तरीके से वायरस आपकी बॉडी में घुस सकता है। अभी मैं चाहूंगा कि क्वेश्चंस मुझे पूछें या मुझे पूछते तो डॉक्टर सुप्रिया मुझे आप हेल्प करेंगे क्वेश्चन पूछ के, तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं अपनी ही तरीके से वन वे बोले जा रहा हूँ। सर आपने जैसे बताया कि डायबिटीज पर से इज नॉट द कॉज कि उसे कोविड हो सकता है, इज जस्ट के इम्यूनिटी लो होने के कारण वन गेट्स मोर ससेप्टेबल कि डायबिटीज हो जाता है। बट डायबिटिक पेशेंट्स, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि जनरली कोविड के मैनेजमेंट में हम स्टेरॉइड्स दे रहे हैं और वो स्टेरॉइड्स शुगर्स को रेस कर रहा है, तो कुछ और क्या घरेलू उपचार करे जा सकते हैं शुगर मैनेजमेंट के लिए अलोंग विथ स्टेरॉइड्स? देखिए, ये एक वॉर लाइक सिचुएशन है। आपको मोटा मोटी ये बता दें कि अब जब कोविड की ट्रीटमेंट हो रही है, बहुत सारे दवाइयां मार्केट में आ चुके हैं, और जैसे आप सुनने में आ रहा होगा रेमडेसिविर, टोक्लिज़ुमाब, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मैं आपको बता दूं ये इतना कारगर नहीं है। ये हिट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं है, लेकिन स्टेरॉइड अभी भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। कोविड में दो ही चीज असरदार है, स्टेरॉइड और ऑक्सीजन। हम जो बाकी दवाइयां दे रहे हैं
वो कोविड के कारण बाकी इम्यूनिटी पे जो हलचल मच जाती है, जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उसको रोकने के लिए दिया जा रहा है। तो इस वक्त शुगर घरेलू तरीके से अगर आप कंट्रोल करना चाहेंगे तो 10 से 20% तक आपको हेल्प मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि इस वक्त बॉडी को कोविड इन्फेक्शन की स्ट्रेस मिल रहा है। जब बॉडी को स्ट्रेस मिलता है तो ऑटोमेटिकली शुगर बढ़ जाती है, और ऐसी सिचुएशन में आपको खान पीन पे अगर ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं हर कोविड पेशेंट से कहता हूँ, बड़ा आसान तरीका होता है दाल का पानी। दाल का पानी पीना इसलिए कहता हूँ कि दाल एक लिक्विड है, वार्म लिक्विड होता है, उसके अंदर टर्मरिक है, हल्दी है, उसके अंदर प्रोटीन है, तो आपको तीनों चीजें उसमें मिल जाता है। हाइड्रेट करने के लिए आपको उसके अंदर लिक्विड मिल गया, आपको हल्दी मिल गई, उसके अंदर आपको प्रोटीन मिल गया, और उस दाल के प्रोटीन में कार्ब्स का भी कुछ कंटेंट होता है जो शुगर इतना नहीं बढ़ाएगा। अगर आप सही मायने में डाइट के थ्रू कंट्रोल करना चाहते हैं तो ध्यान रखें, डाइट की अमाउंट को रिड्यूस मत कीजिए, डाइट की क्वालिटी बदलिए। जब आप डाइट की क्वालिटी बदलते हैं तो आपको जहन में ये रखना चाहिए कि कौन सा फ्रूट्स आपको खाना चाहिए, कौन सा सीरियल्स आपको यूज करना चाहिए, कौन सा वेजिटेबल्स आपको यूज करना चाहिए। तो बड़ा आसान तरीका आपको बता दे, सारे चीजों का एक ही फॉर्मूला है। आप गूगल में डालिए लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आइटम्स, उसमें फ्रूट डालिए तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फ्रूट निकल जाएगा। आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स सीरियल्स डालिए तो उसमें निकल जाएगा। आपको टेस्ट चाहिए तो आप एक काम कीजिए, 70% आपके प्लेट में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड प्रोडक्ट्स होना चाहिए और 30% मॉडरेट लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खेल। घर पे आप अगर करना चाहते हैं तो डाइट कर, ये नंबर 1। नंबर 2, याद रखिए डाइट कंट्रोल का मतलब नहीं है कि डाइट बंद करें। डाइट कंट्रोल का मतलब ये है कि थोड़े थोड़े अंतराल पे पौष्टिक आहार खाएं और लो ग्लाइसेमिक टू मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स के खाने पे ज्यादा ध्यान दें, प्रोटीन पे ज्यादा ध्यान दें, लिक्विड हाइड्रेशन पे ज्यादा ध्यान दें। हाइड्रेट नहीं करेंगे, अपने आप को लिक्विड से हाइड्रेट नहीं करेंगे बॉडी को, तो आपको इंजरी दे सकता है, क्लॉट भी करा सकता है, स्ट्रोक भी दे सकता है, बीपी भी डाउन करा सकती है। अब आ जाता है दवाई। दवाइयों को बिल्कुल नेग्लेक्ट ना करें। अक्सर ये होता है कि मुझे कभी डायबिटीज नहीं था, स्टेरॉइड खा के डायबिटीज हो गया, मैं गोलियां नहीं खाऊंगा, मैं देसी तरीके पे चले जाऊंगा। जनाब, इस समय पे वॉर लाइक सिचुएशन है, थोड़ी सी भी ध्यान आप इधर उधर हटाओगे गोली लग जाएगी। इसका मतलब क्या है कि इस वक्त स्टेरॉइड के कारण जब शुगर बढ़ रही है तो आपका वायरस जो आपकी बॉडी में बैठा हुआ है वो आपको फिर से अटैक करेगा। तो इसलिए दवाइयों पे कभी भी ऊंच नीच ना करें। जब आप ठीक हो जाए, स्टेरॉइड बंद हो जाएगी, धीरे धीरे जब शुगर कंट्रोल हो जाएगा, तब आप फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। जो आप नेचुरल तरीका अपनाना चाहते हो आप सुपरविजन में अपनाइए। फिर दूसरा तरीका होता है आपको घर पे कंट्रोल करने का, वो है माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज। हैवी एक्सरसाइज ना करें क्योंकि कोविड के बाद बहुत ज्यादा कमजोरी होता है। तो कमजोरी के दौरान जब आप बहुत जल्दी सांस फूल जाती है, आपको दिल की धड़कनें बहुत तेजी पकड़ लेती है, तो ऐसे समय पे जबरदस्ती का एक्सरसाइज ना करें, ग्रेजुअली करें जो आपको कम, नींद को खराब ना करें। तो 3 तरीके से मैं कहूंगा जो घर पे आप कर सकते हैं। नींद अच्छे से ले, एक्सरसाइज माइल्ड टू मॉडरेट करें और डाइट पे ध्यान दें, ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे फोकस करें, प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा लें और हाइड्रेट। थैंक यू सर। सर, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ये जो दो तरह के डायबिटिक पेशेंट है, इंसुलिन और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, तो उनका जो रिस्क फैक्टर है उन दोनों केसेस में क्या डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ इम्यून सिस्टम? देखिए, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज की जो क्लासिफिकेशन मोटा मोटी हो रखा है, टाइप 1 में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता और टाइप 2 में इंसुलिन बनता है लेकिन इंसुलिन यूज नहीं होता। तो इनमें क्या फर्क है? दोनों में टाइप 1 पे ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि टाइप 1 पेशेंट बाहर के इंसुलिन पे ज्यादा डिपेंडेंट है। तो टाइप 1 जो होता है
अगर वो इंसुलिन नहीं ले टाइम पे और शुगर के हिसाब से इंसुलिन की डोज को टाइट्रेट ना करें तो फिर उनके लिए दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए टाइप 1 पे ज्यादा रिस्क होता है और ज्यादातर टाइप 1 बच्चे होते हैं तो और जो अर्ली किशोर अवस्था में होते हैं तो उनको इम्यूनिटी पे अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया तो मुश्किल होता है। टाइप 2 जो होते हैं वो मेच्योरिटी मतलब यूजुअली 25 के बाद होते हैं तो उनकी इम्यूनिटी पे इतनी ज्यादा बुरी असर नहीं होती जितना टाइप 1 में होता है। और दूसरा चैलेंज टाइप 1 में ये होता है कि अगर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन उनके शरीर में नहीं जाता है तो एक खतरनाक कॉम्प्लिकेशन उनमें होती है जो उनको पकड़ में नहीं आता, वो है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। मतलब बॉडी के अंदर एसिड बहुत बनता है, मांसपेशियां टूट जाती है, लीवर पे बुरा असर पड़ के हार्ट और ब्रेन पे बुरा असर पड़ने लगता है और उनको फंगल इन्फेक्शन तक हो जाता है। टाइप 2 में क्या होता है कि उनको इम्यूनिटी का जो चैलेंज होती है धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में होता है। जैसे टाइप 2 बड़े लंबे समय तक उनको दवाइयां खाने पड़ते हैं तो उनके शुगर कंट्रोल के ऊपर डिपेंड होता है कितने अच्छे शुगर कंट्रोल किए हैं। अच्छा कंट्रोल है तो इम्यूनिटी अच्छी है, कंट्रोल अगर बिगड़ गई तो इम्यूनिटी। Sir, we have a next question. Can a diabetic patient with smoking habits and having a fever of 99.5 with SpO2 level of 98 be advised to start steroid from the 6th day of the COVID, from the start of COVID? So the first and foremost thing that I will say, a smoker with COVID and diabetes and showing a SpO2 of 99% is not a security. Smoking is the biggest threat anybody can give to his body when he is threatened by COVID. जिसको कोविड हो रखा है वो स्मोकिंग कर रहे हैं तो कोविड को बहुत तेजी से फैलने की अनुमति दे रहे हैं, वीसा दे रहे हैं। रहा स्टेरॉइड की शुरुआत करने की जब बात उठती है, यहाँ पे बहुत जरूरी जानकारी रखना चाहिए, स्टेरॉइड को अननेसेसरीली सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे ना ले। स्टेरॉइड देने के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। हम लोग इंटरल्यूकिन 6 देखते हैं, सीआरपी लेवल्स देखते हैं, हम कोराइड्स स्कोर देखते हैं और आपकी क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। अगर उन सब चीजों पे सेट बैठता है उस क्राइटेरिया में तो फिर हम स्टेरॉइड देते हैं। स्टेरॉइड की फिर अपनी डोसेज भी हम टाइट्रेट करते हैं क्योंकि सिर्फ स्टेरॉइड के नाम से 6th डे, 7th डे, 8th डे डजंट मैटर। डे हियर doesn't get calculated कि 6th day हुआ हम steroid देते हैं। No, steroid is only indicated when you are threatened by major clinical criteria which is going to harm your lungs. अगर आपके lungs को harm होने वाला है तो steroid देते हैं। अब आप पूछेंगे कि क्या harm हो जाएगा? कोराइड स्कोरिंग क्या होता है? कोराइड स्कोरिंग सीटी स्कैन में ये होती है कितने हिस्सा आपका लंग्स को कोविड ने डैमेज किया है। वो उस नंबर ऑफ लोब्स के साथ हम अपनी एक इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं जिस इंडेक्स से हम पता लगा पाएंगे कि आपका सैचुरेशन जो SpO2 कितनी तेजी से गिरेगा। अगर हमें लगता है कि आप कोराइड स्कोरिंग 5 तक पहुंच चुके हैं, सीवियर लेवल तक स्टेज कोराइड 5 तक पहुंच गए हैं तो आपके सैचुरेशन को गिरने में, तेजी पकड़ने में टाइम नहीं लगता। ऐसे सिचुएशन में हम स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए 6th डे, 7th डे मैं रिकमेंड नहीं करता विदाउट क्लिनिकल पैरामीटर एंड इट्स। सर अभी रिसेंटली किंग्स कॉलेज लंदन और मोनाश यूनिवर्सिटी ने ये एक स्टेटमेंट इशू करी थी कि कोरोना वायरस कैन लीड टू डायबिटीज। हाउ मच इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? डॉक्टर सुप्रिया जी, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, थोड़ी सी मैं इस बात को हाईलाइट कर रहा हूँ। ये पुराना सेंसिटिव इशू है। वेस्टर्नर्स को जल्दी जंप कर जाते हैं अपने नाम को ठप्पा लगाने में कि हम बहुत बड़े रिसर्च साइंटिस्ट हैं और वो कमेंट्स मारते हैं। इस वक्त कोई ऐसा पुख्ता एविडेंस नहीं आया। अगर वो स्टडी में बता रहे हैं तो उनकी सैंपल साइज बहुत कम है। 1, 2 अब उन्होंने कोरोना के वेरिएंट्स नहीं देखे हैं, वो देखे हैं पिछले साल वो वेरिएंट को देखे हैं।
अब एक कोरोना बॉडी को स्ट्रेस दे रहा है, तो उसी तरह हेड इंजरी भी स्ट्रेस देता है बॉडी को, और निमोनिया भी स्ट्रेस देता है बॉडी को, और छोटी सी घाव बॉडी में रहता है तो वो भी स्ट्रेस देता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो स्ट्रेस कितनी लंबे तौर पे आपके शरीर में रुकती है। तो वो लंबे तौर पे आपके शरीर को चैलेंज करता है तो मेटाबॉलिक चेंज लाती है, और उस मेटाबॉलिक चेंज से शुगर कितना बड़ा और उसकी रिवर्सल, मतलब वो अपने आप ठीक कितनी जल्दी हुआ। कौन लोग थे जो डायबिटीज हो गया कोरोना के कारण, कौन से उम्र के लोग थे डायबिटीज में क्षतिग्रस्त हुए, और कौन सा ऐसा उनका लाइफस्टाइल था जिनको वो डायबिटीज हो गया, वो उनकी लाइफस्टाइल में और कौन सी चीजें, वो ऐसी चीजें खा रहे थे जो पैंक्रियास को डैमेज कर सकता है, ये जानना जरूरी है। तो इस आर्टिकल की जो उन्होंने बताया है वो हो सकता है एक प्रोपोज्ड ओपिनियन दिए होंगे कि कोरोना डायबिटीज कर सकती है, हो सकता है, क्योंकि कोई भी चीज आपके बॉडी में लंबे तौर तक स्ट्रेस दे तो वो डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाता है। Thank you, sir. So we have Mr. Gaurav Mishra asking, okay, there is a capsule called Insulex, which is available for diabetic patients, and it is claimed to be most effective nowadays in online market. Is it so? Please suggest. Mr. Gaurav, I would like to tell you one very clear thing here. Till now, this capsule has not been recommended by World Body of Diabetes or scientific community at this moment. Second is the oral insulin is definitely under the trial now because insulin itself is a protein. और ये प्रोटीन जब आप खाते हो कैप्सूल के फॉर्म में वो पेट में ही डाइजेस्ट हो जाता है। तो जो आप कह रहे हैं उसके ऊपर स्टडीज पिछले 5-6 साल से चल रही है। अब वो इंसुलिन के कैप्सूल कोई लेता है तो कितना मात्रा में इंसुलिन वो पेट से ब्लड में आती है वो मैटर करता है। वो जो ब्लड में जितनी लेवल ऑफ इंसुलिन आएगी क्या वो उतना शुगर को न्यूट्रलाइज कर पाएगा, वो एक चैलेंज है जिसको हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी इज द बिगेस्ट चैलेंज। And after that, once insulin comes into the blood, how long it stays inside the blood to give a balance to your sugar is again one more challenge. So आपको मार्केट में ऑनलाइन मिल रही है तो आई एम सॉरी दोस्त, मैं ट्रस्ट नहीं करता तो, और मैं आपको इस बारे में ऐसे प्लेटफॉर्म में रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हमारे पास कोई ऑथेंटिसिटी या ऐसा कोई स्टडीज नहीं आया है कि हम इसको रिकमेंड। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि somebody is asking कि कोविड-19 के बाद फेसबुक और व्हाट्सएप में लोग बहुत सारे नुस्खे बता रहे हैं और उनमें से एक है कि नाक में नींबू का रस डालने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और कभी कोरोना नहीं होता। ऐसे नुस्खे क्या फायदेमंद हैं और कारागार हैं? दोस्तों आप शायद अब तक आपको खबर पहुंच चुका होगा कि ब्लैक फंगस आजकल नाक में ये म्यूकोरमाइकोसिस की इंफेक्शन काफी तेजी पकड़ी है। ऐसे ही नुस्खे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रही है और ये शायद चल रहा था। जो फंगल इंफेक्शन इंसान को बहुत ज्यादा इम्यूनिटी ना खराब हो जाए तब तक वो कभी इंफेक्शन नहीं कर पाता, आज वो फंगल इंफेक्शन कोविड में बड़ा थ्रेट बन के उभर रहा है और जानलेवा हो जा रहा है। आपको पता है ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हम इस तरह के नुस्खे अपनाते हैं जिसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। भले ही आप कितनी भी बड़े बड़े बातें कर लें कि ये कारागर पाया गया है, ये उसका ठीक कर दिया है, अगर ऐसा होता तो क्या हमारे पास, मैं किसी के खिलाफ नहीं जा रहा हूं, मैं हर वो नुस्खे को रिस्पेक्ट करता हूं जिसका कोई तथ्य हो, उसकी कोई एविडेंस हो। अब इन चीजों का कोई एविडेंस नहीं है। आप 1, 2, 3 लोग ठीक हो गए वो तुक्के में हो सकता है, क्या लाखों में हुए हैं? मैंने तो नहीं देखा। अगर नींबू से बढ़ जाता तो हर आदमी नींबू लगा लेता, ऑक्सीजन की डिमांड ही नहीं होती, अस्पतालों पे लोड ही नहीं रहता, लोग मरते नहीं। आपको ये कहना चाहेंगे बहुत खतरनाक चीज है, प्लीज इस पे ध्यान मत दीजिए। नींबू में विटामिन सी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होती है और नाक के जरिए फेफड़ों में चलेगी वो अगर ड्रॉप तो आप खांसते खांसते जानलेवा हो जाएगा। आप नींबू नाक से डालते हो ना तो आपके थ्रोट में जाता है, लंग्स में नहीं जाता है दोस्त, ठीक है? तो आप नाक को क्लीन रखें, बट नींबू से आई डोंट थिंक इसमें कोई मुझे नहीं लगता। आई एम सॉरी।
सर आपने अभी ब्लैक फंगस के बारे में बताया है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या ब्लैक फंगस इन्फेक्शन डायबिटीज पॉपुलेशन में ज्यादा पाया गया है और इसके लिए क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए? देखिए, ब्लैक फंगस जो है म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन है, और आपको पता है कि फंगल क्लासिफिकेशन जो साइंटिफिकली कहा जाता है, ये पेड़ पौधों के ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है, ये पेड़ पौधों के ग्रुप में जाते हैं। तो अब बात उठती है कि म्यूकोरमाइकोसिस डायबिटीज में कैसे होता है। जैसे मैंने कहा, वो सिर्फ डायबिटीज ही नहीं, कोई भी इम्यूनिटी चैलेंज्ड बॉडी है, जिसको एड्स हो रखा हो, या किसी को किडनी ट्रांसप्लांट हो रखा हो और हाई इम्यून सप्रेशन ड्रग्स पे है, या किसी को कैंसर हुआ हो, या किसी की बेड रिडन स्टेट में है और राइस ट्यूब घुसी हुई है नाक के जरिए, उन सब में ये इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है, या बहुत लंबा स्टे हॉस्पिटल में होता है तो उनको होती है। अब ये ब्लैक फंगस कैसे आता है? ब्लैक फंगस ह्यूमिडिटी से आती है। आपको बता दें, ब्लैक फंगस जहां पे सीलन वाली दीवारें हैं, या ब्रेड के ऊपर काले काले चीज पकड़े हैं, और या आप कोई मॉइस्ट वेदर में हैं जहां पे गीले मिट्टी हैं, गीले दीवारें हैं, गीले लकड़ हैं, उस जगह पे हैं, या आप जो आजकल हो रहे हैं बहुत ज्यादा, वो नेबुलाइजर यूज करते हैं, स्टीमर यूज करते हैं, वो स्टीमर को साफ नहीं रखते, जो पानी स्टीमर में डालते वो पानी कहाँ से आया ये भी पता नहीं होता है, कौन से पतीले से पानी लिया गया है, कौन से टंकी आपका ऊपर था, पता नहीं वो कितने दिनों से साफ नहीं हुआ है, उसके अंदर फंगस पकड़ा होगा। ऐसे पानी लेके जब आप स्टीम लेते हो तो फंगस की इंफेक्शन हो जाता है, खासकर ऐसी सिचुएशन में जहां स्टेरॉइड जान बचाने के लिए दिया जा रहा है। अब वो स्टेरॉइड के कारण इम्यूनिटी जब डाउन हो जाता है तो वो एक कारण बन सकता है, पूरे कारण नहीं बनता है फंगस के लिए। डायबिटीज में शुगर कंट्रोल नहीं रहता है तो भी वो इन्फेक्टेड हो जाता है। तो म्यूकोरमाइकोसिस की इन्फेक्शन इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होने से के साथ साथ आप कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। बहुत लोग अपनी नाक के अंदर उंगली घुसाते हैं, अब आपने गीली दीवार पे हाथ रख लिया, सैनिटाइज नहीं किया, आप नाक खुजा रहे हो अंदर, तो वो आपने उसको एक जगह दे दिया। दूसरी चीज ये है कि आपने ह्यूमिडिफायर यूज कर रहे हो ऑक्सीजन सिलेंडर में, जो ऑक्सीजन मीटर होता है उसमें ह्यूमिडिफायर होता है जिसमें आप पानी लगा के रखते हो, उसके अंदर से ऑक्सीजन घुस के आपके नाक से के जरिए जाती है। अब वो जो ह्यूमिडिफायर है वो कितना क्लीन है, उसके अंदर जो आपने पानी रखा है वो कितना क्लीन है, वो मैटर करता है। इसलिए इससे बचने का एक तरीका है, सबसे पहला तो हाइजीन पे ध्यान दीजिए, अपने शरीर की हाइजीन, वाटर की हाइजीन, वाटर स्टोरेज एरिया की हाइजीन, घर के दीवारों की हाइजीन, आपकी लक्कड़ कपड़े जो हैं, आपकी फूड कैसा है उसके ऊपर ध्यान देना है, साथ में आपका शुगर कंट्रोल करना है। डॉक्टर तो ट्रीटमेंट करेगा, आपको कोविड से बचाना है। बहुत सारे लोगों से मैंने देखा है बड़े गुस्से में आते हैं, आपकी दवाइयों से, डॉक्टर्स की दवाइयों से हम बिगड़ जाते हैं। जी साहब, एक चीज ध्यान रखिएगा, दवाइयां आपकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को दे के दिया जाता है, आपकी कॉम्प्लिकेशंस जो होती है आपकी बॉडी और आपकी दवाइयों के बीच में इंटरेक्शन के गैप से होता है। तो ये बहुत जरूरी है यहाँ पे कहना कि आपको अपनी ख्याल ज्यादा रखना जरूरी है, जैसे हाइजीन, पानी, कौन सा ह्यूमिडिफायर यूज कर रहे हो, किस जगह पे रह रहे हो, गीले कपड़े आसपास तो नहीं है, आपके पर्दे तो गीले नहीं है, बहुत दिनों से तो साफ नहीं हुआ, घर के फ्लोर मैट को ध्यान दीजिए, पेट्स पे ध्यान दीजिए, पेट्स के जरिए भी आते हैं। तो ये सारे चीजें आप पर ध्यान रखेंगे तो आपको फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मंसूरी समाज से कि कोरोना ट्रीटमेंट के बाद फेरेटिन लेवल 1200 आ रहा है तो डॉक्टर ने नॉनवेज के लिए मना कर दिया, प्रोटीन के लिए क्या आहार लिया जा सकता है जो फेरेटिन ना बढ़ाए? मैं शाकाहारी हूँ और मैं मांसाहारी की बातें बोल नहीं सकता। स्टडीज आए हैं, कोरोना तीव्र गति से बहुत भयानक रूप लेती है जो मांसाहारी लोग, ये पाया गया है। सीरम फेरेटिन की जब बात उठती है, ये एक इन्फ्लामेटरी मार्कर है जो हमारे ब्लड में जब तेजी से बढ़ता है, ये जो शो करता है कि कोरोना कितना घातक है, और इसके कारण हमारी जो कॉम्प्लिकेशन रेट है हम गेज करते हैं। अब प्रोटीन के बारे में जब आप बात करते हैं, और आप अगर एगिटेरियन है तो एग्स में अच्छी प्रोटीन होती है, आप एग्स ले सकते हैं।
वेजिटेबल्स में दाल से अच्छा प्रोटीन कुछ नहीं मिलता। आप दाल ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, आप सोया ले सकते हैं, क्विनिया का चीजें ले सकते हैं, क्विनिया का उपमा खा सकते हैं, क्विनिया के चिप्स ले सकते हैं, क्विनिया इटसेल्फ भी प्रोटीन, आप उनको यूज कर सकते हैं। तो आपके ऐसी चीजों में अंकुरित चने हैं, उसमें भी आपको प्रोटीन मिलती है। तो ऐसी चीजों का आप ध्यान दे सकते हैं। So Mr. Rajan Singh wants to know, for a diabetic patient, if he is infected with COVID, should he be following the diabetologist only, or should he follow a physician or take medicines from both the people? वेरी गुड क्वेश्चन। राजन साहब, बहुत बड़ी चीज आपको बता दें कि डायबिटोलॉजिस्ट जो बनते हैं वो एक जनरल मेडिसिन, एमडी मेडिसिन करके ही बनते हैं। और सबसे पहला चीज मैं आपको अवेयर करा दूं, एक एमबीबीएस जब वो 5 साल बिताता है, 5.5 साल, 1 साल वो इंटर्नशिप करके कितने साल एक्सपीरियंस रखता है और कहाँ काम किया है, कितने पेशेंट्स देखता है, उसकी नॉलेज बेस वहां से बनती है। कोई अगर सिर्फ डायबिटीज पे फोकस कर रहा है और वो जनरल प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो आपको जरूर हेल्प लेना चाहिए जो इन्फेक्शन कंट्रोल करने में एक्सपीरियंस रखता है। यहाँ मैटर करता है कि कौन आपको ट्रीट कर रहा है। यहाँ पे आप अगर देख रहे हैं किसी ने आपको क्लियरली बोल रहा है भाई मैं सिर्फ डायबिटीज ही ध्यान रखता हूँ, तो आपको दोनों के साथ लेना चाहिए, डायबिटोलॉजिस्ट के भी और एक फिजिशियन जो कोविड ट्रीट कर रहा है। लेकिन ऐसे लोग होते हैं जो एमडी मेडिसिन के बैकग्राउंड रखते हैं और उनमें वो एक्सपीरियंस भी है, वो एक्सपोजर भी है, जो इसको भी हैंडल करते हैं और साथ में डायबिटीज को भी कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे लोग भी आपके लिए कारगर हो सकते हैं। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं, कोविड की मैनेजमेंट में सतर्कता बहुत मैटर करता है। ट्रीटमेंट सारे सेम देते हैं, आप किसी की भी प्रिस्क्रिप्शन उठा के देखिए, वही दवाइयां मिलते हैं, लेकिन डॉक्टर और आपके बीच में सतर्कता बहुत जरूरी है। कौन ज्यादा सतर्क है आपकी कॉम्प्लिकेशंस को पकड़ने में, वो मैटर करता है। तब चाहे किसी भी फिजिशियन के पास जाइए, वहां आप ध्यान दीजिए। आपका डायबिटोलॉजिस्ट अगर वो मेडिसिन बैकग्राउंड का है और वो सारे ट्रीट करता है, तो आप उसके साथ तालमेल मिलाइए और उनसे क्वेश्चन जरूर पूछिए कि सर आप कोविड हैंडल कर लोगे, जरूर पूछिए, आपका हक है। Sir, our next question, what is the minimum oxygen level and pulse level for nowadays for a perfect person? Okay. Most important thing to be kept in mind, आपकी muscle mass बहुत अच्छी है and you are a regular athlete when your heart rate is around 48 to 54 and your body build is good and you are a regular exercising person, तो आपका 96, 97, 95 is good enough, कोई दिक्कत नहीं। और बहुत लोगों को मैं ऐसे भी देखा हूँ जिनकी सैचुरेशन 94 नॉर्मल हेल्दी स्टेट पे भी 94 रहता है। That doesn't give any alarming sign, but आपको यूजुअली 98, 99 रहती है and then suddenly you see it has come to 92, 91 and it is not increasing and it is creating discomfort to you, provided you are not psychologically affected. Maximum लोग तुरंत saturation probe लगा लेते हैं और झटके से देख लेते हैं कि अरे मेरा तो 90 आ गया, 88 आ गया। नहीं, सबसे पहला आप अपनी नेल्स की नेल पॉलिश को क्लीन कीजिए, नेल पे कोई कोटिंग नहीं होना चाहिए, नंबर 2 आपकी उंगलियां ठंड नहीं होनी चाहिए, वो एनफ वार्म होना चाहिए, उसको वार्म करिए। उसके बाद जो गैजेट आप लेते हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, वो उतना रिलायबल नहीं होता है, तो फिर भी आप उसको जब लगाते हैं तो उसकी जो सेंसर है जहां से वो लाइट एमिट करती है, वो आपके नेल बेड को अच्छी तरीके से कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी उस सेंसर की प्लेसमेंट देखिए। डिफेक्टिव पीसेस भी मार्केट में डिमांड में आ चुकी हैं, वो डिफेक्टिव पीसेस आपको साइकोलॉजिकली डर पैदा करती है क्योंकि वो सैचुरेशन 80 दिखा देती है जो कि आपके पास है नहीं। आप साइकोलॉजिकल शॉक में चले जाते हो और अस्पताल पहुंच जाते हो। आपको ये ध्यान देना है कि वो सेंसर जो इंफ्रारेड रेस फेंक रही है वो आपके उंगली के साइज तक है नहीं है। पतली छोटी उंगली होती है, वहां तक नहीं पहुंचेगा तो क्या सैचुरेशन देगा, मोटी उंगली होगी घुसेगा ही नहीं तो क्या सैचुरेशन देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो कहाँ तक है, आपकी नेल बेड को अच्छे से फ्लैश कर रही है और तो आप उसको एटलीस्ट 1 मिनट तक रखिए और छाती के पास रखिए। हाथ को ऐसे मत उठा लीजिए और हिलाइए नहीं, उसको लगा के आप छाती के पास रखिए और उसे 1 से 2 मिनट टाइम दीजिए और फिर देखिए अगर वो सैचुरेशन स्थिर हो जाता है at least for 3 to 5 minutes, that is the saturation you should consider. So healthy saturation is 95 to 98
100 है तो ठीक है, 95 to 98, एंड हार्ट रेट, हेल्दी हार्ट रेट जो माना जाता है आपको 75, 90 पार नहीं होता। Sir, we have Dr. Tanya. She wants to know a 80-year-old person has just recovered from COVID, but he still has a high blood sugar of 400. What kind of food do you recommend and what should he be avoiding? First of all, Dr. Tanya, if a person is having 400 blood sugar, this is not something which can be controlled by only food. Please note it down. This cannot be controlled by food. Yes, you have to see what kind of food he is eating. Again, I will repeat glycemic index. Please focus on glycemic index. Number one. Number two, here most important thing is he just recovered from COVID just recently. So don't take it so easy. Please start insulin if possible for a short period of time so that his sugar should come down to a respectable limit of 200. And then you can taper down and stop insulin and put him on oral hypoglycemia. That will be the must and best way to treat such high blood sugar. That is my request and sincere advice. Food will not alone can help. Sir, Mrs. Sunita Mishra wants to know, does the fasting sugar go up in cases of COVID infected body? If I'm not diabetic, is there a possibility that my sugar level will go up in case steroid is given to me? Most of the time it is important to keep this knowledge in mind because we all are prone to get diabetes in life because our lifestyle is so bad. This COVID is just a trigger factor. Once any trigger factor touches your body, then sugar can blow out. Okay. Most of our populations, they never screened themselves for sugar. They never gone for oral glucose tolerance test. They have never gone for any sugar test very frequently. So अब जब कोविड आ गया है, आपके घर में फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज का और आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, आपकी food habits are not good and not routinely being followed, and if you are not sleeping properly, and if you are a multitasker and mentally you are involved in lot much of stress, then COVID will be the key. It will open up your diabetes and diabetes can. Now your question कि fasting बढ़ सकता है क्या? जी, अगर आप रात को सो नहीं रहे हो, नींद ठीक से नहीं हो रहा है, बॉडी को ठीक रेस्ट नहीं मिल रही है, तो स्टेरॉइड अंदर भी बनते हैं बॉडी के अंदर, तो वो आपकी शुगर को बढ़ाने में मदद करती है। तो फास्टिंग ब्लड शुगर, आपको थोड़ी सी भी ग्लूकोज इंटॉलरेंस की टेंडेंसी है, आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस की टेंडेंसी है, आई मीन टू से किसी की पेट की साइज वेस्ट से ज्यादा हो या फैट एक्स्ट्रा हो, एब्डोमिनल विसेरा में फैट हो या रात को स्नोरिंग करते हो जो लोग सोते वक्त, उनमें ज्यादा रिस्क होता है डायबिटीज। और किसी को भी डायबिटीज हो फास्टिंग बढ़ती है, किसी को पोस्ट पैंडल बढ़ जाता है और किसी को दोनों बढ़ जाती है। So Mrs. Geeta Malhotra wants to know, once the lungs are damaged after COVID, do they become normal by time? Okay, so this is very intelligent question. Let me tell you, the recovery rate of damaged tissue in the lungs is not very high, but lung has a capacity to take over the function. I mean to say, अगर एक हिस्सा lungs का डैमेज हो गया कोविड से, तो जो हेल्दी हिस्सा लंग्स का रह जाता है, बच जाता है, वो टेक ओवर कर लेता है। तो इसमें पूरी तरह से नॉर्मल तो हो नहीं सकता, क्योंकि अभी बहुत जल्दी ये बोलना, क्योंकि अभी स्टडीज बहुत सारे आ रहे हैं कि कोविड की एरा के बाद अब पता नहीं कोविड कब जाएगा, 2022 में जाएगा, 2023 में जाएगा, 2024 में जाएगा। जितने म्यूटेंट स्ट्रेन्स आ रहे हैं इस वक्त अलग अलग रूप में, तो मुझे नहीं लगता 2-3-4 साल तक कोविड जाने वाली है। तो अब कोविड लंबे तौर पर लंग्स को इफेक्ट करती है, तो लंग में जो डैमेज होगा वो क्या रूप लेगा, कोई भी साइंटिफिक कमिटी अभी तक कमिट नहीं कर पा रहा है। तो लंग्स को रिपेयर करने का तरीका आप ही के हाथ में है, और वो है क्लीन एयर, जो कि इम्पॉसिबल है जब तक हम प्लांटेशन ना करें, इम्पॉसिबल है जब तक हम खुद अपनी बदलाव ना करें। दूसरा होता है पोल्यूशन फ्री एरिया। पोल्यूशन फ्री एरिया में
डस्ट उड़ना या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उड़ना या कार्बन फिल्ड एयर होना, वो भी आपको लंग डैमेज कर देता है तेजी से जब आप कोविड के हैं। तीसरा होता है, अगर कोई घर पे स्मोक कर रहा है, वो पैसिव स्मोकर को ज्यादा डेंजर होता है। स्मोकर तो खुद अपने आप को मार रहा है, लेकिन दूसरा जो उसका स्मोक ले रहा है उसके लिए भी बहुत खतरा पैदा हो जाता है। तो आपको इन सब चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है आपकी लंग्स। लंग्स का एक ही एक्सरसाइज है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जब आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज मेंटेन करें, बहुत एग्रेसिव करने की जरूरत नहीं, बट कंट्रोल्ड एंड कंसिस्टेंट एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी जिंदगी आराम से जाएगी। ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत प्री मेच्योर होगा मैं आपको ये बोल दूंगा कि 100% ठीक हो जाएगा, ये नहीं है, मुमकिन नहीं है। क्योंकि हमारे शहर में इतने पेड़ पौधे भी नहीं है और इतने पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं है। सिर्फ हम कोविड को दोष देंगे तो नहीं होगा। कोविड ने खरोंच कर दिया है लंग्स में, हमें उसे बचाना है। सर, एक बारी डायबिटीज कोविड के बाद जब हो जाती है तो इज दैट डायबिटीज रिवर्सिबल? Yes, see, if you see type 2, because COVID-induced diabetes is always type 2 diabetes. Because insulin producing cells are beta cells. We don't know how much COVID is going to damage beta cells. अगर beta cells मर के diabetes हो रहा है तो type 1 हो जाएगा। बट कोविड के दौरान जो शुगर हो चुका है, एक्सरसाइज करें, हेल्दी लाइफस्टाइल ले, तो हो सकता है जो बीटा सेल्स हैं वो रिकवर कर जाएंगे स्ट्रेस से, और उसके बाद वो इंसुलिन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इंसुलिन शुगर न्यूट्रलाइज करने में सक्षम हो जाएंगे। तो क्यों नहीं होगा, रिवर्सिबल होगा। यस, इट इज पॉसिबल। Sir, we have Miss Smita Vora asking, after 2 doses of vaccination, how much percentage is there are chances of a diabetes patient getting affected by COVID? This is a highly scientific question. If we see after getting fully vaccinated for COVID, that a diabetic patient gets an immunity as good as any normal ordinary person, provided sugar is under control. So the efficacy of the vaccines that is being displayed in an official website, that 70% is effective in Covishield, 76 to 78% effective in Covaxin, stands same for you if your sugar is under control and you are taking complete vaccine. सर, मिस्टर अमीर हसन पूछना चाहते हैं कि ऑक्सीजन लेवल उनका 7 दिनों से 85 है, वो और उनको डायबिटीज नहीं है, तो वो कैसे पढ़ सकता है? अमीर साहब, आपका ऑक्सीजन लेवल 85 है। सबसे पहला चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको कोविड होके कितना दिन हो चुका है, ये आपने नहीं बताया। दूसरा ये नहीं बताया कि आप ये जो ऑक्सीजन लेवल बता रहे हैं, क्या आप ऑक्सीजन लेते हुए इतना मेंटेन हुआ? आप ऑक्सीजन ले रहे हैं अभी तक या बिना ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं? अगर बिना ऑक्सीजन के आपका 85 है और आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, आपको कमजोरी नहीं हो रहा है, आप लोगों को पहचान पा रहे हो, आपको थकान नहीं है, तो मशीन बदलिए, चेक कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, फिर दोबारा एक अच्छी मशीन से चेक कीजिए। आप अगर ऑक्सीजन ले रहे हैं और उसके ऑक्सीजन लेते हुए 85 है तो ये बहुत कम है 7 दिनों से। तो आपके फेफड़े में जरूर कुछ खराबी आई है, कोई डैमेज हुआ है, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। वो आपको बता सकते हैं सीटी स्कैन करने के लिए, कुछ ब्लड टेस्ट भी करने के लिए बोलेंगे, और फिर उस बाद दवाइयों की डिसीजन से इसमें सुधार लाया जा सकता है। बहरहाल मैं आपसे ये कहूंगा कि इसको लाइटली मत लीजिए। अगर सच्ची में 85 है तो इलाज कीजिए, प्रॉपर इलाज कीजिए। सर, वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम राष्ट्रीय मंसूरी समाज की, कोरोना ट्रीटमेंट के बाद हाथों की उंगलियों में सनसनाहट रहने लगी है, क्या ये स्टेरॉइड की वजह से है या कोरोना या डायबिटीज होने के लक्षण है? अगर ऐसा है तो क्या उपचार कर सकते हैं? सिर्फ उंगलियों में सनसनाहट हो रही है तो इसे स्टेरॉइड के ओर ध्यान जाने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि स्टेरॉइड कोरोना के दौरान 1 या 2 या 3 हफ्ते चलता है, उससे ज्यादा नहीं चलता। तो 1, 2, 3 हफ्ते में आपकी शुगर बहुत तेजी से बढ़ी है, तो शुगर और स्टेरॉइड दोनों के असर से न्यूरोपैथी होता है, इसको हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। और ऐसी सिचुएशन को अगर ठीक करना है तो नर्व बचाने की दवाइयां आती हैं,
वो आप अपने डॉक्टर साहब से बात करके नर्व बचाने की दवा ले सकते हैं। और कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो आपको यूज करना चाहिए, और वो प्रक्रिया जो होती है वो आपको शुगर से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसमें आपको हेल्प करता है ठीक करने में। जैसे आपने उंगलियों को मसाज करना या आप एक्सरसाइज करना, छोटी छोटी चीजें हैं, वो सब करेंगे तो चला जाएगा। हाँ, अगर ये सनसनाहट आई है कोविड ट्रीटमेंट के दौरान और स्टेरॉइड लेने के दौरान, तो ये चला भी जाएगा। जब आप स्टेरॉइड बंद कर लेते हैं, शुगर कंट्रोल हो जाता है और नर्व रिकवरी के मेडिसिन भी मिलते हैं, चला जाता है, आप घबराइए नहीं। So we have last two questions. Mr. Abhishek Bhadwar wants to know how long do the antibodies remain post-recovery in a COVID-recovered diabetic patient, and also what is the recommended time frame for the second shot of Covishield in such patient after recovery? See, first and foremost thing is that if you are not vaccinated and you have got infection of COVID, so it usually happens that after COVID, 3 to 4 weeks later after COVID, your antibodies starts happening inside the body. So we always recommend post-COVID 6 weeks later, 6 or 8 weeks, you can take the vaccine. Sir, Mr. Smith Vora wants to know, a diabetic patient while sitting on chair gets swelling in the legs. Why does this happen? Okay, wonderful. One most important thing to be kept in mind that if somebody who is a diabetic and if he sits for a long time on the chair and his feet get swollen up, then it can be because of 2 or 3 causes. One cause is dysautonomia, because the nerve ending, which is nerve, is like electric wiring. It goes to the tissue and it supplies the tissue. It supplies not only the blood running pipes of the feet, it also supplies the small muscles. So these firing of the nerves helps the blood to flow uniformly and help in perfusion, मतलब सिंचाई में help करता है, खून की सिंचाई में. So अगर वो connection between the nerve and tissue gets disturbed, अगर उसके बीच में गैप बढ़ जाती है, तो डिसऑटोनोमिया कहते हैं हम उसे, उससे भी सूजन आता है, जिसके कारण पानी जो निकल जाता है खून से, वो जमा होने लगता है वहां पे. देन सेकेंड थिंग कम्स डिपेंडेंट इडीमा. डिपेंडेंट इडीमा का मतलब ये है कि आप जब खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है आपके जिस जगह पे पुल डालती है, जैसे पाँव में पुल डालता है, आपके जो जहां जिस जगह बैक है वो बैठ जाते हैं, वहां पे जब जमा सूजन आती है उसको हम डिपेंडेंट इडीमा कहते हैं. वो भी डायबिटीज डिसऑटोनोमिया, न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, नर्व के बिगड़ने से होता है, प्रोटीन की कमी से होती है, और कभी कभी डायबिटिक पेशेंट यूरिन के जरिए प्रोटीन लॉस कर जाता है, और डायबिटिक पेशेंट जिसमें किडनी भी इन्वॉल्व है उनमें भी सूजन आती है. और तीसरा कारण जो होती है वो है दवाइयां. कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयां डायबिटिक पेशेंट्स को दिए जाते हैं, वो भी इस सूजन का कारण बनता है. तो आप इन 3 चीजों को रोल आउट करना बहुत जरूरी है. Thank you very much, sir. इतना informative session, इतनी enlightening, इतना कुछ diabetes के बारे में आपने हमें बताया. I would like to request the CEO of Safetree Company, Mr. Vikas Anand, to extend his vote of thanks to you. Thank you, sir. I'm sure, sir, हमारे participants को आपका session बहुत अच्छा लगा होगा. Already I'm getting lots of remarks from the participants. Thank you so much for your session, sir. This will definitely help the knowledge. Sir, diabetes is such a, आपने भी starting में बोला, we are the world's capital, if I were to say, in the number of the diabetic patients in the world. So itna ज़्यादा है. So we need lots and lots of guidance. So this is our mechanism कि हम लोगों को बताएं. Already the country में, because of tsunami, there is so much difficult times all of us are going. So thank you very much, sir, for your time. मैंने आपको बोला और immediately आपने accept कर लिया. Thank you very much, sir. This will definitely help lots and lots of participants. I can tell you, we were live on the Facebook. Lots of people were joining. Lots of associations have joined just to know how to prevent and manage diabetes in such a difficult time, sir. Thank you very much, sir. Thanks for giving me this privilege. I hope people will get benefited. That is my motto and that is your motto. God bless. Everybody should stay safe. Be careful. Don't take life lightly. It is very beautiful. Enjoy, keep safe and be happy.
Thanks a lot. We will win the situation. We will come back with flying colors. Thank you so much, Vikas. Thank you. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. Thank you so much. Thank you, Dr. Supriya.